लगा तो मेरे फोन ते अपने आप हो चुकी। ते मेरी गल सुनो, जो मैं वैसे लगा ला क्लास मतलब रिकॉर्ड कर लूंगे। हाँ वो तो Yes, good afternoon everybody. So I was just checking live class आज available नहीं हो पा रही because of some technical issues there. So I'm recording the class at the same time, and you can watch the recorded session for today. And if you find any issue, मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत ही deeply explain करदा ताकि थोड़े doubts रह नहीं ना. But still अगर थोड़े mind च कोई भी doubt बाद चो भी रहंदा है तो आप easily discuss कर सकते हैं. Need not to worry in that case. I always say please drop your message only. So cash flow statement ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ cost and account management accounting ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ subject ਹੈ, fund flow analysis, ratio analysis ਤੋਂ ਬਾਅਦ fund flow ਸੀਗਾ. Fund flow analysis ਤੋਂ ਬਾਅਦ cash flow statement ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ topic mentioned. So we are going to discuss cash flow statement, a quick revision कि financial statement ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇਟ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਈਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਥਰਡ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋ ਤੇ ਆਊਟਫਲੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਨਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ. ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰਆਲ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ. ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜਾਂ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟਰਮ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 3, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस में आए, फॉरगॉट टू स्पीक इन पंजाबी. अकाउंटिंग स्टेटमेंट 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੈਕਸ਼ਨ 240 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਮੇਜਰਲੀ ਇੱਥੋਂ MCQ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. And it has mandatory for the companies to make the cash flow statement.
कैश फ्लो स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਦੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇਗਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਜਿੱਥੋਂ MCQs ਫਰੇਮ ਹੋਣੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਪਏ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਫਰਮ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫਰਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਦਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਮ ਇੰਨਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪਿਆ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਫਰਮ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਰਮ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਫਰਮ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੂਗੀ, ਪੇ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਲੋਨਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਰਟੀਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਟੇਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਫਰਮ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਫਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਰਟੀਨਿਟੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ here are the basic MCQs based on cash flow statement. The cash flow statement की show करती है? चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट की शो करती है? प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस शीट करती है, चेंजेस इन कैपिटल वास्ते अलग स्टेटमेंट बनती है, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट यूज नहीं होती। सो इट विल बी सी, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करी जाती है? इट इज made on the basis of accounting standard 3. Next is cash flow statement is optional, mandatory for companies, only for banks or only for small firms. ਜਿਹੜਾ accounting standard 3 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ accounting standard 3 ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 3 ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫॉर द ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। So its answer will be, which is not a financial statement, balance sheet
है, बिल्कुल है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, ट्रायल कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। तो ध्यान रखना अपने दिमाग 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। नेक्स्ट टू क्वेश्चन, फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो एंड चूज द आंसर। Companies like 2013 ensures profit maximization, true and fair view of the statements, tax reduction, cash inflow. So obviously its answer would be true and fair view of statement. Next is cash flow statement helps in depreciation calculate करने में, liquidity को manage करने में, transactions को record करने में या journal entries में, किस में help करता है? So its answer would be B option, liquidity के बारे में बताता है। बाकी सारी चीजें तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल एंट्रीज, लेजर वगैरह बनाते हो तब पता चल जाता है आपको। Let's move to the next topic. We were going to do the benefits of CFS. So it helps key benefits ने की फायदे ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने दे। ठीक है, एक छोटी सी चीज ऐड कर देने हैं आप। ਜਿਹੜਾ कैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कितना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये ਦੱਸਦਾ है कि कितना हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ਜਿਹੜਾ कंपनीज एक्ट 2013 है ये कहता है only mandatory कितना है, एने क्या कि बनाना कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बट ओवरऑल कंपनीज एक्ट 2013 की करता है mandates कैश फ्लो किन के मैंडेट करेगा कंपनीज टू mandates companies to make cash flow statement। ओके जी, सो इत्थे एक होर चीज़ भी तुहानूं करवा दिंदे आ कि जिहड़ियां सारियां कंपनीज वास्ते मैंडेटरी नहीं करदा, जिवें तुसीं सुनिया होएगा OPC बारे, ठीक है, 1% कंपनी या स्मॉल कंपनीज ने इन्हां नूं रिक्वायरमेंट नहीं आंदी। एक्सैप्शन की नहीं जी इन्हां दियां OPC या कोई एक स्मॉल लेवल ते कोई कंपनी रन कर रही है, बहुत ही घट जिंदा सैलरी या सैलरी से कह रही हैं सेल स्ट्रक्चर काफ़ी घट है, ठीक है, तो जो स्मॉल कंपनीज होंदियां ने इन्हां नूं रिक्वायरमेंट नहीं होंदी। ठीक है, सो इस चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सारे वास्ते नहीं है जी ये, बस सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मैंडेटरी जरूर कर रहे बट छोटी कंपनी या 1% कंपनी नूं नहीं करता। ਇਹਦੇ 'ਚ डोरमेंट कंपनीज भी आ जांदियां ने, डोरमेंट DORMANT डोरमेंट कंपनीज देखो वो कंपनीज होंदियां ने, छोटी जी नोटिंग क्रिएट करते हैं कि वो कंपनीज जिहड़ियां कि एक्टिवली कोई बिजनेस या ऑपरेशंस उपर वर्क नहीं कर रही, मतलब एक्टिव नहीं हैगियां इस वक्त, ठीक है, तो वो इहदे च नहीं आउणगियां। अगर कंपनी की कोई खास सी तौर पर कोई स्ट्रोंग अकाउंटिंग मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं हैगी, अगर कंपनी की कोई खास तौर पर कोई स्ट्रोंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं हैगी या खास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हैगियां तो वो अंदे विच उन्होंने ऊपर डोरमेंट कंपनीज कह देंगे। ठीक है जी, फिर उठाना पौनी है। चलो जी, नैक्सट आप कर रहे थे बेनिफिट्स ऑफ CFS की है।
इट हेल्प्स इन फाइनैशियल एनालिसिस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक गल है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ फाइनैशियल एनालिसिस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਸੋਲਵੈਂਸੀ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਸੋਲਵੈਂਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਤੇ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜਾਂ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ shows cash generating ability कि फर्म ये भी ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋਗੇ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ ਫਰਮ ਨੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਫਰਮ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ओवरऑल एबिलिटी कि हाँ फ्यूचर के विच भी इन्ना जनरेट कर सकती है। ठीक है, नैट एसेट तुहानूं आई होप याद होएगा कि जिन्ने भी टोटल एसेट्स होंदियां ने उहदे विच जो टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दिंदे आ तो दैट इज कॉल्ड नैट एसेट्स। जिन्हों आपां ओनर दी जां शेयर होल्डर्स दा फंड्स भी कहने आ। फाइनल जो बचा सारा कुछ वो शेयर होल्डर्स के फंड्स ही बचनगे ना। ठीक है, तो अगर आप हम गल कर रहे हैं, अगर आप चेंज की गल करते हैं, ठीक है, तो जिन्ना भी ईयर एंड पे नैट एसेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਐਸਐਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੈ। ठीक है, सो हाँ जी, कितना फर्म ने एक्चुअली कैश जनरेट किया तो कितना कैश फ्लो प्रोडिक्शन कितनी है, गेट बंद कर दो, कितना फ्यूचर के जनरेट कर सकते हैं, वो भी चीज़ रहूगी। इंप्रूव्स कंपैरेबिलिटी। देखो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली आपको नहीं पता कि एक फर्म जी है वो अपैरल्स की है, ठीक है, जी कि अपैरल्स की है, जी कि मैन्युफैक्चरिंग दे विच एक फर्म है जी यूटेंसिल्स बनाती है, आयरन बेस्ड हो गया कुछ, उनकी दो अलग अलग कंपनीज ने, इन्होंने अलग अलग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, इनकी अलग हो रहूगी, तो अलग अलग नेचर ऑफ कंपनीज के अकॉर्डिंगली आप कंपेयर नहीं कर सकते उन्होंने, ठीक है। बट अगर आप ओवरऑल जनरली देखिए कि भाई ओवरऑल नैट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो कितना पैसा आया, फाइनैंसिंग तो कितना, इन्वेस्टिंग तो कितना आया, इनका दूसरी कंपनी का ऑपरेटिंग तो, फाइनैंसिंग तो, इन्वेस्टिंग तो कंपैरिजन ईजी हो जाऊगा इंडिविजुअली, ओवरऑल हैड्स आप चैक किए तो जिथे अकाउंटिंग मैथड्स अलग अलग लगे हो सकता है कि ये पैरल कंपनी जो एक पर्टिकुलर फाइनैशियल स्टेटमेंट बना रही सी या उन्हें मान लो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो भी मैथोलॉजी यूज की तो इस कंपनी जो भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी फाइनैशियल रिकॉर्ड्स बनाती जी रूल्स रेगुलेशन से या स्टैंडर्ड्स या मैथड से अलग से। बट अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का पैटर्न एक ही है ना, ठीक है, तो फिर उन्होंने कंपेयर करना ईजी हो जाएगा क्योंकि वो एक ही तरीके बने तो जी भी डिफरेंसिस अपन अकाउंटिंग मैथड्स अलग अलग होने करके आते हैं तो कंपैरिजन ईजी कौन करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश इनफ्लो आउटफ्लो बारे दसता है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बनया नहीं बनया ये अपन कैश फ्लो रिलेशन कितना वो एक्चुअली सही है या नहीं है, क्योंकि चेक हो जाता ना डबल अपना, तो वो एक्यूरेसी भी चेक करता है। जो पिछे देखो पिछले साल कितना कैश फ्लो जनरेट होया एक्चुअल इस साल कितना होया, ठीक है, पास्ट कंपैरिजन नाल भी ते जोड़े पास्ट दे प्रेडिक्शंस सीगियां भी पिछे ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ एक्चुअली फर्म ने उन्ना एक्चुअली जनरेट किया या नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट तो एक्चुअल कैश या तो पहले थ्योरी पढ़ी हुई है इस चीज़ पर कि फर्म के कोल जिन्ना प्रॉफिट पिया होंदा उन्हें कोल उन्ना एक्चुअल कैश नहीं होंदा, तो एक्चुअल कैश या एक्चुअल प्रॉफिट के जो रिलेशन है वो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं कि हाँ ओवरऑल फर्म ने प्रॉफिट तो इन्ना ठीक है कटिया, पर एक्चुअली अगर आप कैश की गल करिए तो उन्हें ऑपरेटिंग तो कितना कटिया, उन्हें इन्वेस्टमेंट तो कितना कटिया, उन्हें फाइनैंसिंग तो कितना कटिया, इस चीज़ की क्लैरिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आती है। तो बेनीफिट की रहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के विच, ये हेल्प करती है प्रॉफिट्स वास्ते, एसेट्स वास्ते या लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी वास्ते, बिल्कुल जी लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी वास्ते करती है। कैश फ्लो इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर, there are 2 questions for you on your screen, attend these questions।
हाँ जी, कैश फ्लो इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना नहीं, टैक्स कैलकुलेट करना नहीं, लेजर्स प्रिपेयर करना नहीं। एक बारी फर्म ने पिछले साल कितना जनरेट किया, फर्म ने इस साल कितना जनरेट किया, फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ जनरेट कर सकती है, ਇਹ ਚੀਜ਼ उनकी तो पता चलेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कि कितना एक्चुअल ਵਿੱਚ फ्यूचर ਚ जनरेट हो सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंप्रूव करता है प्रॉफिट, सेल्स, प्रोडक्शन, कंपेरेबिलिटी। बिल्कुल फर्म ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈरेबिलिटी ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ बैलेंस शीट ਤੇ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ਜਿਹੜੀ मैथड है वो अलग अलग बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, पर जरूरी नहीं है बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट के अलग होंगे तो सेम स्टैंडर्ड के नाल ही बनेगा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली। सो बिफोर मूविंग फर्दर कि केड़ी चीज़ां ने जिहड़ियां कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने यूज होंगे ने, शायद तुम सोच रहे हो मैम डायरैक्टली क्यों नहीं करवा रहे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी की गल डायरैक्टली क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेस क्लीयर करना जरूरी है। हुण इहदे च देखो इस चैप्टर के अंदर ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उपर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट सीगा उन्हें आप समझना जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर बेटा जी जो कैश है उन्होंने कैश इन हैंड तो ऑब्वियसली आऊगा ही आऊगा, बट जो डिमांड डिपॉजिट होंगे इमीडिएटली मतलब आप बैंक में क्या उन्हें कन्वर्ट करते अपने डिपॉजिट्स कैश इमीडिएटली अपन जो मिल जाते हैं उन्हें डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ये तो जी हो गया कैश, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स में कैश ही दे अंदर ही लेंदे हैं। हुण आप समझते हैं कैश इक्विवेलेंट्स की होंगे जिन्हें भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ने, ठीक है, जिन्हों की मैच्योरिटी 3 मंथ्स के अंदर अंदर हो जानी है उन्होंने आप कैश इक्विवेलेंट्स कहने हैं। करंट एसेट में फर्क है तो कैश इक्विवेलेंट्स वो वाले कैश इक्विवेलेंट्स कम्स अंडर करंट एसेट्स, नो इश्यूज विद दैट, बट जिन्हें की शॉर्ट टर्म जिन्हें की मतलब शॉर्ट टर्म डरेशन के अंदर मतलब 3 महीने के अंदर अंदर ही पूरे हो जाए वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ला गया, ठीक है, जो कि 3 मंथ्स के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट फॉर्म की जो कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप जेकर मैनेजमेंट पैसे चाहिए ने तो इमीडिएटली तो नहीं पर विद इन 3 मंथ्स अपन मिल जाएंगे तो वो कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। करंट ये हाईली लिक्विड होंगे ने अपन पता है ये ईजिली कैश च कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो इन्होंने अंदर मतलब इनकी जी वैल्यू चेंज होना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैश इक्विवेलेंट्स अंदर आप वही चीज़ां लाएंगे जिन्हों की जी वैल्यू चेंज होने का जो चांसिस ने बहुत ही घट ने, ठीक है, मतलब जेकर वैल्यू चेंज हो गई फिर तो वो इक्विवेलेंट्स हुए नहीं ना। A very low risk of value change इस पॉइंट का प्लीज़ ध्यान रखना तुसी तो जी की कंडीशन है कैश इक्विवेलेंट्स देखो करंट एसेट बारे तुहानू अलग तो पता है आप पढ़े हुए हैं पर कैश इक्विवेलेंट्स के विच 3 मंथ्स तो जिन्हों की घट 3 मंथ्स या 3 मंथ्स तो घट के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं वो कैश इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंगली कंसीडर होंगे ईजिली कन्वर्टेबल होंगे तो रिस्क जो चेंज होंगे घट होंगे उन्होंने कैश इक्विवेलेंट प्लीज़ इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। हम जिवें ट्रेजरी बिल्स ने, ठीक है, तो मैं थोड़ा डीप भी थोड़ा करा देंगी रिवीजन करवा देंगी तो कैश करंट एसेट्स के विच की है कितने से आप एक तो प्रॉब्लम बच्चे मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइव क्यों नहीं हो रही है तो लाइव का रीजन टैक्निकल पॉइंट दे एंड तो रह रहे हैं जी। चलो ट्रेजरी बिल्स से शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिवें हम ट्रेजरी बिल पर थोड़ा पढ़वा देनी है दिस इज नॉट मैंशन बट थोड़ा एग्जाम्पलीफाई करना जरूरी है। ट्रेजरी बिल्स में शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल के कुछ बिल ऐसे होंगे सारे देखो बिल्स जोड़े ने वो कैश इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं करे जाएंगे, ठीक है, जिहड़े बिल्स 91 डेज के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाने हैं कन्वर्ट हो सकते हैं उनका कैश इक्विवेलेंट ले लेंगे। जो ट्रेजरी बिल्स
182 डेज ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 364 डेज ਨੇ ਉਹ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ਵਿੱਚ नहीं आएंगे। तो ट्रैजरी बिल्स ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਡੈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ मतलब कुछ बिल्स ਜਾਂ कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस ਦੇ ਲਈ कुछ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ मतलब ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ट्रैजरी बिल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो हाईली लिक्विड होंगे ने भी कोई रिस्क नहीं होंगे क्योंकि गवर्नमेंट बैक ने पहले वो पॉइंट पढ़िया कि जो ये कैश इक्विवेलेंट्स होंगे अंदर वैल्यू चेंज होंगे रिस्क घट होंगे। ट्रैजरी बिल जब पढ़ रहे थे कि ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं तो लोग उन्होंने खरीदते हैं बट जो रिडीम होंगे तो वो मतलब ज़्यादा फुल अमाउंट से होंगे तो फेस वैल्यू जिन्नी भी है परचेज प्राइस मान लो 95,000 है फेस वैल्यू की 1 लाख सी तो इशू कोई घट रेट से तो 5,000 का जो इन्वेस्टर है उन्होंने प्रॉफिट हो जाता है। ये ताही इनू कैश इक्विवेलेंट कंसीडर करा जाएगा जेकर 3 मंथ्स तो घट दे रिस्क है नहीं गा तो कन्वर्ट हो सकता है ईजिली कैश के अंदर। कोई भी शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी है जी कि हाईली लिक्विड होंगी है जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म कोई मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी हो सकती है कोई कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं देखो कोई ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं कोई भी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कोई सर्टिफिकेट ऑफ CD है ये सारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म कंसीडर जेकर इन्हों की ड्यूरेशन 3 महीने तो घट है ठीक है कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ठीक है तो वो शॉर्ट टर्म इक्विवेलेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज कंसीडर होंगे हैं ठीक है। इत्थे आपां गल कर रही सी ज़्यादातर जी शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की जी ड्यूरेशन है वो 1 साल तो घट होंगी है बट जिहड़ियां 3 महीने तो घट रहनगियां उन्होंने आपां कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विच लै लांगे। जिहड़े शेयर्स तुसीं खरीददे हो उन्होंने जनरली एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि जो एक फर्म खरीदती है तो मान लो तुसीं कोई शेयर्स खरीदो ईजिली कन्वर्टेबल नहीं होंगे बट कई बार आपां वो शेयर खरीद लैंदे जिन्हां दी रिडम्पशन बड़ी मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर होने वाली है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ शेयर्स खरीदे जिन्हों की रिडम्पशन नियर टू रिडम्पशन ने कंपनी में पैसा आने वाले थे उस वक्त कंपनी ने ये कंपनी एक दूसरी कंपनी वापस करन जा रही है पैसा तो उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही रिडीम हो रहे हैं तो आप खरीद लिया उस टाइम के जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम ही होने वाले सी तो वो की ने उन्होंने आप कंसीडर कर सकते हैं कैश इक्विवेलेंट से अदरवाइज शेयर्स जोड़े ने वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नहीं होंगे ठीक है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी कि सारे कैश इक्विवेलेंट्स जो ने मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब मार्केटेबल मतलब ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं ना बेचे जा सकते हैं नाल दी नाल बट जिन्हें भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज ने वो जरूरी नहीं है कि कैश इक्विवेलेंट्स क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज का हम देखो तुम कमर्शियल पेपर्स लगा लो या ट्रेजरी बिल्स लगा लो ट्रेजरी बिल तुम पढ़िया कि 182 डेज के अकॉर्डिंगली भी निकलते हैं 364 डेज के अकॉर्डिंग भी होंगे है ठीक है। तो ये तो फिर कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आए ना तो सारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट्स नहीं होंगी बट सारे कैश इक्विवेलेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज अंदर ही आएंगे क्योंकि हो सकते हैं क्योंकि वो कैश है मतलब ईजिली कन्वर्ट होने वाले होंगे हैं तो कैश इक्विवेलेंट्स 3 मंथ्स की रही है तां करके बिना कंसल्टेटिव लीगल सॉल्यूशन ओके सो हुण आपां पढ़न जा रहे हैं कि कैश फ्लो दे मीनिंग बेसिक की रहूगा तो ये ध्यान नाल तुसीं समझना है कि
कैश टू कैश कुछ होया है, उस तरह की ट्रांजैक्शन ਨੂੰ कैश फ्लो नहीं ਮੰਨਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ कैश ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ट्रेजरी बिल्स खरीद ले या ਤੁਸੀਂ कैश ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ट्रांजैक्शन है ना, ਉਹਨੂੰ कैश फ्लो नहीं ਮੰਨਿਆ जाएगा। किसी नॉन करंट आइटम दे करके पैसा गया मतलब आउट होया, किसी नॉन करंट आइटम दे करके पैसा इन होया, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कैश फ्लो ਮੰਨਦੇ ਆ। रिसीट आना कैश की, पेमेंट होना कैश की। ਹੁਣ देखो ਇਹ मशीनरी है, बेसिकली मशीनरी की सेल की तो कैश आया, तो कैश फ्लो है बिकॉज मशीनरी नॉन करंट आइटम है, ठीक है। कलैक्शन फॉर डेट फ्रॉम डेटर्स, करंट एसेट सीगी अपने, उन तो पैसा आया अपन, डिविडेंड तुसी रिसीव किया, ठीक है, इंटरस्ट रिसीव किया तुसी, ठीक है। तो ये मतलब जिन्हें समझना कि कैश टू कैश वाला ना हो, कि मतलब सिंपली तुसी एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ होनी चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है कि कैश फ्लो के अंदर एक्चुअली जोड़ा है ना, वो एक पासे डेबिट या क्रेडिट वाली साइड एक पासे तेरे को कैश जनरेट होना चाहिए। यानी थोड़ा जा वर्डिंग में शायद समझाने वास्ते आप PDF के अकॉर्डिंगली देखते हैं। आ देखो एक लाइन पढ़ो, इतने लिखा हुआ है जी कि cash flow implies movement of cash in and out due to some known cash items, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स जी कि कैश एक साइड कैश नहीं है, मैं शायद नॉन करंट वर्ड यूज करगी, शायद ताहूं हो सकता है समझ ना आया हो। receipt from cash from a known cash item is termed as cash inflow, while cash payment in respect of cash item such is known as cash outflow। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਊਟਫਲੋ ਹੈ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ सेल किया, ठीक है, तो उन्हें तो कुछ पैसा आया, एक साइड मशीनरी था नॉन कैश आइटम सी ना, ठीक है। मैं तो कोई होर एग्जाम्पल देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि डेटर्स बेसिकली की ने नॉन कैश आइटम है ना, ठीक है। तो उन्हें तो कैश आया, डिविडेंड एक साइड पे नॉन कैश, मतलब एक साइड नॉन कैश होगा, वो एक्चुअली अपना दूसरी साइड उन्हें कैश जनरेट हो गया, तो इंटरेस्ट रिसीव किया, कैश टू डिविडेंड लिखा या कैश टू इंटरेस्ट लिखा। उन्हें पर गल कर रहे हैं कैश आउटफ्लो की, तुसी मशीनरी परचेज की, तुसी क्रेडिटर्स पे किया, सैलरी वेजेस, इन्हां सारे विच कैश जा रहा है। सो कैश मैनेजमेंट के अंदर जो भी पैसा एक्सैस पैसा, हूँ इतने एक इंपॉर्टेंट चीज़ टॉपिक जरूरी इतने आ गया जो आपको रीड आउट करना जरूरी है, समझना जरूरी है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल। देखो कैश मैनेजमेंट के अंदर जो भी पैसा आपां अपने को जो भी कैश एक्सैस पिया सी उन्हें आप कैश इक्विवेलेंट के अंदर इन्वेस्ट करता। जो मैं एग्जाम्पल दी थी, ट्रेजरी बिल्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये है जी ट्रांजैक्शन। जो तुम कैश मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ोगे, मतलब कैश कितना उन्हें कंसीडर किया जाएगा कि तुम जो भी पैसा इन्वेस्ट किया कैश इक्विवेलेंट विच, बट जो तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट करोगे उनके जी एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन है ना जी, उन्होंने कंसीडर नहीं करते कि तुम कैश इक्विवेलेंट्स परचेज किए या मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज की जी ईजली कन्वर्टेबल से 3 मिनट दिया, तो उस तरह के ट्रांजैक्शन कैश फ्लो कंसीडर नहीं करना या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त कंसीडर नहीं करना, क्योंकि वो तो उनके करके कैश जनरेट नहीं होया ना, जस्ट कैश टू कैश इक्विवेलेंट कन्वर्ट करता, कोई एक्चुअल रियल इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होया। थोड़े को कल MCQ की बनूगा कि किहड़ी ट्रांजैक्शन इनफ्लो या आउटफ्लो को इंडिकेट कर रही है, तो जेकर तुहानूं लगे एक्चुअल कैश जनरेट ही नहीं होया तो फिर तुसीं उन्होंने कर देना कि हाँ भी ये वाली एक्टिविटी जी है वो इनफ्लो आउटफ्लो को इंडिकेट ही नहीं कर रही क्योंकि एक्चुअल कैश जनरेट नहीं होया। हुण आपां पढ़ रहे हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये तो बड़ा बेसिक सीगा, आपां ये समझिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट
बेसिकली एक फाइनैशियल स्टेटमेंट है, फर्म ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 3 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਰੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਫਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਜਾਂ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬਿਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, RBI ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਤੋਂ ਨੇ। 91 ਡੇਜ਼ 182 ਡੇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਟਿਵਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਈਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰਸ, ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬਿਲਸ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, CDs ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਲ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਹੋਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਮ ਦੀ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਮੇਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਟਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫॉर एग्जाम्पल एक गारमेंट कंपनी है, रॉ मटीरियल खरीदया, एक्चुअली ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਕੁਛ ਆਪਾਂ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਨਫਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਇਲਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਇਨਫਲੋ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੂਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ टैक्स की पेमेंट की। ठीक है, अगर इनकम टैक्स कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी करके है तो उन्होंने हो सकता आप ना मनीए, बट इनकम टैक्स अपनी फॉर्म के अकॉर्डिंगली कुछ कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स पे किया तो वो की है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसीडर होएगा। तो हम देखो ये तो पता चल गया कि फर्म की जो भी कोर बिजनेस है, ध्यान नाल सुन लेना, फर्म का जो कोर बिजनेस है उनके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ ने वो सारियां की ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ने। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹਾਈਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ उन पर कितना रन कर पा रहे हैं, उनकी एबिलिटी, जेकर फर्म अच्छे डिविडेंड्स ऑपरेशन एक्टिविटी करके अच्छा कर पा रही है तो फर्म की डिविडेंड कितना को पे कर सकती है, लोन्स कितने पे कर सकती है, खुद कितना इन्वेस्ट कर सकती है एक्सटर्नल फंड्स को लिए बिना, क्योंकि अपने खुद के काम तो पैसा कट रही है ना, बाहर ऊपर रिलाई नहीं करते हुए कितना को कर सकती है इन्वेस्ट, वो सारा कितों पता
चलूगा अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत सारे एग्जांपल्स ने, डेटर्स ਤੋਂ पैसा आया, कमीशन रिसीव ਕੀਤਾ, कुछ भी हो सकता, सप्लायर्स, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁड्स ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ कैश आउटफ्लो के अंदर आते हैं। ठीक है, सो टुडे सेशन वी कवर्ड बेसिक मीनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर स्टडी किया आप। ठीक है, फिर उस बाद अपन अंडरस्टैंड किया कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज किहड़ियां ने, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक टाइप आप बेसिक जी कवर कर लिए फिलहाल। बेनिफिट्स की रहिंदे आ, ऑब्जेक्टिव्स की रहिंदे आ, इस चीज़ की पर स्टडी की। आप एमसीक्यूज कुछ कवर कर लेंगे कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होंगे वो किस इफेक्ट में रिमूव करता है, इन्फ्लेशन में, डिफरेंट अकाउंटिंग मैथड्स में, टैक्स रेट्स में या गवर्नमेंट रूल्स में। देखो हर कंपनी की जी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज हुए वो अलग अलग हो सकते हैं, बट जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वो बस सीधे तरीके के नाल सारा इकट्ठा सामने ने बई कंपनी का फाइनेंसिंग तो कितना पैसा है, कंपनी की इन्वेस्टिंग तो कितना पैसा आया, कंपनी की अकाउंटिंग तो कितना पैसा सॉरी ऑपरेटिंग तो कितना पैसा आया है ना। तो अकाउंटिंग मैथड जो भी हो हार्डली मैटर्स, क्योंकि आप उस चीज़ में कंसीडर नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट किंदे विच हेल्प करूगा, कैश मैनेजमेंट विच, स्टॉक इवैल्यूएशन दे विच, डेप्रीसीएशन दे अंदर, ऑडिटिंग का ध्यान रखना भी। कैश मैनेजमेंट बहुत सारे तरीके होंगे, उनका वन ऑफ वे की है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। इट्स आंसर वुड बी ए। किंदे हेल्प करता है, फ्यूचर सेल्स विच, पास्ट कैश फ्लो प्रेडिक्शंस नू, दी एक्यूरेसी नू, पोस्ट हाँ ये बिल्कुल पास्ट जो सोचा गया सी कि वो एक्चुअली होया या नहीं हो, तो फ्यूचर दे वास्ते भी एक आइडिया दे दिंदा आपां। कैश फ्लो स्टेटमेंट किंदा रिलेशन दसदा है, सेल्स एक्सपेंस दा, प्रॉफिट ते कैश फ्लो दा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज दा, कैपिटल एंड ड्राइंग दा। इट्स आंसर वुड बी प्रॉफिट एंड कैश फ्लो दा, क्योंकि प्रॉफिट एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअली कैश कितना जनरेट होया वो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पता चल जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किंदे हेल्प कर दी है, प्रॉफिट इंक्रीजिंग विच, बैलेंस करने विच, इनफ्लो ते आउटफ्लोज नू, जनरल एंट्रीज वेरी वेरी बेसिक, इनफ्लोज ते आउटफ्लोज वास्ते। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विच, कैश किंदे कैश विच की इंक्लूड होएगा, बेटा कैश विच सिर्फ कैश इन हैंड ते बैंक बैलेंस इंक्लूड होंदा है या डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं बस। कैश इक्विवेलेंट्स की होंगे है, लॉन्ग टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे, फिक्सड होंगे या हाई, तो ये शॉर्ट टर्म होंगे बिल्कुल कैश इक्विवेलेंट्स ते हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड की होंगे जी, हुण तुहानूं बिल्कुल क्लियर है 3 मंथ्स होंगे जी। कैश इक्विवेलेंट्स मस्ट हैव हाई रिस्क, नो लिक्विडिटी, इनसिग्निफिकेंट रिस्क और वैल्यू चेंज। देखो हाई रिस्क है तो फिर आप कैश देखो वो तो ना लाँगे आप, हाईली लिक्विड होनी चाहिए, तो कोई चांस नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर उनका कि उनकी वैल्यू चेंज होगी। जेकर चेंज ही होगी तो जिन्ना कंपनी ने एक्सपेक्ट किया उन्ना तो कोई पिया ही नहीं ना, तो वो इनसिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए उनके चेंज होने की चीज़ कैश इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं होंगी। ट्रेजरेबल्स हो सकते हैं जी, कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो सकती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, बट इक्विटी शेयर्स नॉर्मली नहीं कंसीडर होंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विच जाके रियलाइज होने होंगे। कई बार प्रेफरेंस शेयर्स नू ट्रीट किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट्स जो वो लॉन्ग टर्म परचेज, लॉन्ग टर्म लंबे टाइम वास्ते हो रहे होंगे हैं, या फिर वो रिडम्पशन की नीड के नेड़े होंगे हैं, या उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होंगे या नॉन कन्वर्टेबल। जो रिडम्पशन के नेड़े होंगे हैं जी उदों आप प्रेफरेंस शेयर की गल करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर की आता है, सिर्फ कैश आता है, सिर्फ बैलेंस आता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स आंदियां ने, या कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। कैश तो कैश इक्विवेलेंट्स दोनों ही आते हैं जी। डिमांड डिपॉजिट्स की होंगे है, फिक्स एसेट होंगे है, कैश इक्विवेलेंट्स होंगे है, कैश तो डिमांड डिपॉजिट्स होंगे तो चंगी तरह पता है कि कैश ही है जो बैंक के अंदर पे। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है,
ट्रेजरी बिल्स का आरबीआई खुद करता है, बट करता किसके बिहाफ से है? गवर्नमेंट के बिहाफ से। आंसर वुड बी आरबीआई लोन, बट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल्स लॉन्ग टर्म होंगे है, शॉर्ट टर्म होंगे है, फिक्स्ड होंगे है, इक्विटी होंगे है। ये होंगे है शॉर्ट टर्म में ने क्योंकि मैक्स टू मैक्स 364 डेज देने का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ने कितने ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ट्रेजरी बिल्स की मैच्योरिटी जी कितने टाइम तक होंगी है? अनलिमिटेड अप टू 1 to 10 years, more than 5 years, up to 1 year. So mostly it is up to 1 year. Treasury bills are considered high risk? No, because government they will have the issue with moderate risk free. Yeah, it is completely considered risk free. थोड़ा बहुत भी नहीं, risk free asset है। शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स आर ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट्स जो लॉन्ग मैच्योरिटी होंगी है। जो लॉन्ग मैच्योरिटी है तो फिर तो वो कंसीडर ही नहीं हुए ना कैश इक्विवेलेंट्स की, करंट एसेट्स भी नहीं आए जो एक 2 साल तो ज़्यादा बन रही है कोई भी चीज़। रिस्क हाई नहीं, कैश इक्विवेलेंट्स तो बहुत घट रिस्क वाला। सो इट्स आंसर विल बी शॉर्ट टर्म लेस देन 3 months होएगा ताही वो ट्रेजरी बिल्स में कैश इक्विवेलेंट्स से कंसीडर किया जाता है। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड होंगे ने, ईजीली कन्वर्टेबल होंगे ने, लॉन्ग टर्म होंगे ने, इंटेंजिबल नहीं जी। ये फिक्स्ड ईजीली कन्वर्टेबल होंगे ने ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ 1 year। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 1 year ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਜਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਹੈਵ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਅਪ ਟੂ 1, 6 or 3 months, 1 year, 6 months or 3 months. So its answer will be understood 3 months. All marketable securities are cash equivalents. All cash equivalents are marketable securities. सारी मार्केट नहीं, सारी कैश इक्विवेलेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज बन सकती हैं क्योंकि इजिली कैश से कन्वर्ट हो रहे हैं। सो इट्स आंसर वुड बी बी। कैश फ्लो का मतलब की है? प्रॉफिट जनरेट करना, मूवमेंट ऑफ कैश, या इंक्रीज इन एसेट्स, या सेल्स। कैश फ्लो किन्ने ते होएगा? प्रॉफिट जनरेट करने के ऊपर, मूवमेंट ऑफ कैश के अंदर, कैश फ्लो जिन्हें तो एक्चुअली जो वो इनफ्लो या आउटफ्लो होया होवे उन्हें ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। गिव मी योर आंसर। messages are there in group as well कि class नहीं लग रही। this is the first time that issue has happened कि जो class है वो थोड़ी लग नहीं रही है उनके ऊपर और लाइव शो नहीं हो रही है। समटाइम टेक्निकल इशू में भी देयर, बट आफ्टर दिस सेशन आई टॉक टू द टीम कि ये जो इशू है कब तक सॉर्ट हो सकता है। जो भी कैश की मूवमेंट होएगी, मतलब एक्चुअली कैश जनरेट होएगा, उस चीज़ में मूवमेंट ऑफ कैश कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम देखो जो कहोगे मैम प्रॉफिट भी था, बट प्रॉफिट कई बार सेल्स क्रेडिट से की आप, तो उस चीज़ में कंसीडर कर अकॉर्डिंग करते हुए आप क्रेडिट प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, तो उस चीज़ में एसेट्स इनक्रीज होया, जरूरी तो नहीं कि कैश उत्थे आया होएगा, ऐसा कोई भी फती हो सकती है। ठीक है, सेल्स जरूरी नहीं है ना कि क्रेडिट कैश ही हुए, क्रेडिट चीज़ हो सकती है, फिर तो कैश की मूवमेंट नहीं हुई, कैश जनरेट नहीं होएगा। ठीक है, कैश की एक्चुअली मूवमेंट हुए, कैश इनफ्लो की रेफर करता है, ऑब्वियसली रिसीट ऑफ कैश, बट इज अ कैश आउटफ्लो। सेल्स ऑफ गुड्स नहीं, डिविडेंड रिसीव नो, पेमेंट टू एम्प्लॉयज, वेरी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इन्वेस्टमेंट इन कैश फ्लो, कैश इक्विवेलेंट इज, देखो कैश इक्विवेलेंट ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है।
कैश इनफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा कि नॉट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बहुत सारे बच्चे कैश इक्विवेलेंट से जुड़ी इन्वेस्टमेंट होंगी है उन्होंने वो कैश आउटफ्लो कह देंगे क्योंकि पैसा लग गया, बट बेसिकली कैश तो कैश इक्विवेलेंट विच ही दिया था, इट इज नॉट अ कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, तो डेटर्स का कोई इक्विवेलेंट नहीं है ना, कैश इक्विवेलेंट्स नहीं है, ठीक है। तो एक नॉन करंट आइटम से तो कैश आया तो एक ही बन गया इनफ्लो। वाई आर कैश इक्विवेलेंट्स एक्सक्लूडेड? ये रिस्की होंगे है, लॉन्ग टर्म नहीं होंगे है। देखो कैश इक्विवेलेंट्स लॉन्ग टर्म था नहीं होंगे, ना ही रिस्की होंगे। ये जस्ट कैश का कन्वर्जन है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। एक्टिविटीज़ कितनी तरह ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ? 3 ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। परचेज ऑफ मशीनरी की ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, की ये इन्वेस्टिंग है, की ये फाइनेंसिंग है, की ये नॉन कैश है। ठीक है जी, तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ परचेज ऑफ मशीनरी की है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। इशू ऑफ शेयर्स ऑपरेशन ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, फाइनेंसिंग है क्योंकि ਨਾਲ ਆਪਾਂ पैसा जनरेट कर रहे हैं एक तरह का, बट फाइनेंसिंग बिल्कुल कर रहे हैं। सैलरीज की पेमेंट करना ये तो बिजनेस की ऑपरेशन ਨਾਲ रिलेटेड है, गुड्स ਨੂੰ सेल करने से जो अपन खर्चा करना पैंदा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ਹੁੰਦਾ है। बिल्डिंग की सेल ऑपरेटिंग है नहीं, नहीं इन्वेस्टिंग है नहीं, इन्वेस्टिंग है सॉरी, बिकॉज इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी फिक्स्ड एसेट में सेल परचेज करके जो भी चीज़ आ रही है वो इन्वेस्टिंग नेचर की होएगी। विच एक्टिविटी रिलेट्स टू मेन बिजनेस, जो भी मेन बिजनेस की गल हैगी मीनस ऑपरेटिंग की गल है, क्योंकि फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग मेन बिजनेस नहीं होंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ हेल्प करेगा? डेटा को हाइड करता है, प्रॉफिट इंक्रीज करता है। प्रॉफिट इंक्रीज करना तो जरूरी नहीं है, कैश पोजीशन में एनालाइज करने वास्ते या टैक्स, बिल्कुल कैश पोजीशन में एनालाइज करने वास्ते। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की होंदियां ने मेनली बिजनेस दी एक्टिविटीज़ ਨੂੰ ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की ਜਿਹੜੀ कि कोर है, पहले ही समझा दिता गया सीगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है? शेयर्स तो फाइनेंसिंग हो गया, मशीनरी परचेज करना इन्वेस्टिंग हो गया, गुड्स की सेल करना बिल्कुल ये बिजनेस का कोर काम होता है, तो ये ऑपरेटिंग में आएगा। लोन की रीपेमेंट करिए आपने, ये तो फाइनेंस से रिलेटेड है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इंडिकेट करता है प्रॉफिट को, इंटरनल सॉल्वेंसी को, एक्सटर्नल फ्लो फंड्स को रिलेट करता है, एसेट्स की नहीं। फर्म की अंदरूनी कितनी सॉल्वेंसी है, फर्म एक्चुअली किस स्टेट पे पड़ी है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? इससे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से। पेमेंट ऑफ वेजेस क्या है? ये भी एक ऐसा खर्चा है जो गुड्स को सेल करने के लिए लगाया गया, सो इट विल बी बेसिकली ऑपरेटिंग। विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं है? गुड्स की सेल नहीं ऑपरेटिंग है, क्रेडिटर्स को पे किया ऑपरेटिंग है, सैलरी दी ऑपरेटिंग है, शेयर इशू करना ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अफेक्ट करती है किसको? देखो सेल परचेज ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲॉस में इंडिकेट कर दिया ਸੀ। Strong operating cash flow means weak business, high debt, good financial health, loss। अच्छा ऑपरेटिंग होएगा तो अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ को ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। So that's all about cash flow statement from operating activities तक हजे ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, rest is pending, but we'll try कि ਆਪਾਂ next बात तो एक session ਹੋਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ टॉपिक ਨੂੰ कवर कर देंगे ਆਪਾਂ, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ स्पीडली कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत स्लो चल रहा है ਤੁਹਾਡਾ। That's all for today। रिकॉर्डेड सैशन का इशू रहा अज कि रिकॉर्डेड ही मिल पाया, ठीक है, बट विल ट्राई कि नैक्सट जी क्लास है वो आप कोशिश करा कि वो थोड़ा लाइव भी मिल जाए।
थैंक यू सो मच।